कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद भवन पहुंच्या छे। राहुल गांधी लोकसभाની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેશે। આજે તેમનું એમપી પદ છે તે પરત મળી ચૂક્યું છે। 137 દિવસ બાદ રાહુલ ગાંધીનું सांसद पद बहाल थयुं छे। 134 दिवस बाद सुप्रीमे सजा पर रोक लगावी हती। सुप्रीमे सजा पर रोक लगावता राहुल गांधीનું सांसद पद परत मળી ગયું છે। લોકસભાના અધ્યક્ષે રાહુલનું સંસદ સભ્ય પદ પરત આપ્યું છે। સમગ્ર કોંગ્રેસમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો મલ્લિકાર્જુન ખડગે વિપક્ષની બેઠકમાં સાંસદોનું મોઢું મીઠું કરાવ્યું હતું। તો લોકસભાના અધ્યક્ષે સંસદ સભ્ય છે સંસદ સભ્ય પદ પાછું આપ્યું છે। તો રાહુલ ગાંધી આજે સંસદમાં તેમની વાપસી થવાની છે। તેઓ ઘરેથી નીકળી ચૂક્યા છે। ટૂંક સમયમાં સંસદ પહોંચશે અને ત્યાં તે પોતે નિવેદન આપશે। ચોમાસુ સત્રમાં છેલ્લા અઠવાડિયું બાકી છે ચોમાસા સત્રમાં અને તેમાં પણ ભાગ લેશે। સંસદ ભવન રાહુલ ગાંધી પહોંચી ગયા છે। રાહુલની સંસદ સભ્યતા પર નિર્ણય લેવાયો। થોડી વારમાં રાહુલ ગાંધી સંસદ પહોંચી ગયા છે અને ચોમાસુ સત્રમાં તેઓ ભાગ લેવાના છે। જો કે કોંગ્રેસ સતત એ પ્રયત્નો કરતું હતું કે જેટલી ઝડપથી તેમનું સંસદ સભ્ય પદ રદ કરવામાં આવ્યું હતું એટલી ઝડપથી તેમને બહાલ કરવામાં આવે, તેમને ફરીથી એમપી બનાવવામાં આવે અને થયું પણ એવું। જે કોંગ્રેસના નેતા અધીર રંજને લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને પત્ર લખ્યો હતો અને રાહુલ ગાંધીનું જે સભ્ય પદ છે તે પરત કરવા માટે પત્ર લખ્યો હતો। गारी 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 તો કોંગ્રેસ પણ એવું જ ઈચ્છતી હતી કે રાહુલ ગાંધી ચોમાસુ સત્રમાં ભાગ લે, ચર્ચામાં ભાગ લે, કારણ કે જે પ્રમાણે મણિપુરમાં જે પ્રમાણે હિંસા થઈ રહી છે તેની પર અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ છે તે વિપક્ષ દ્વારા લાવવામાં આવ્યો છે। આવતીકાલે અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થશે। કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે દ્રઢપણે માની રહી હતી કે રાહુલ ગાંધી આમાં ભાગ લે તેવી તેની પ્રબળ ઈચ્છા હતી, જેના કારણે કોંગ્રેસ દ્વારા જે અધ્યક્ષ છે ઓમ બિરલા તેમને પણ પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો। તેમને પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીનું જે સંસદ સભ્ય પદ છે જેટલી ઝડપથી તે ગયું હતું, રદ કરવામાં આવ્યું હતું, તેટલી ઝડપથી તેને બહાલ કરવામાં આવે। તો અત્યારે કોંગ્રેસ માટે ખુશીનો માહોલ આપ લાઈવ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। રાહુલ ગાંધી સંસદ પહોંચી ગયા છે। સૌથી પહેલા આવીને તેમણે ગાંધીજીની પ્રતિમાને નમન કર્યું છે, તેમને પ્રણામ કર્યા છે। લોકો સાથે જે મંત્રીઓ સાથે તેઓ વાતચીત કરી રહ્યા છે અને ધીરે ધીરે તેઓ સંસદમાં જશે અને પોતાનું જે વક્તવ્ય છે તે રજૂ કરશે। गारी તો રાહુલ ગાંધીને તેમનું સંસદ પદ છે તે પરત મળ્યું છે। રાહુલ ગાંધી તે સંસદ પહોંચી ગયા છે। સૌપ્રથમ તેમણે સંસદ આવીને ગાંધીજી પ્રતિમાને તેમણે બંને હાથ જોડ્યા હતા, ગાંધીજીની પ્રતિમાને તેઓ પગે લાગ્યા હતા, નમન કર્યું હતું। ત્યારબાદ કોંગ્રેસ નેતાઓ સાથે વાતચીત કરતા કરતા તેઓ આગળ વધ્યા હતા। આજે તેઓ સંસદમાં જશે અને પોતાનું જે મત છે તે રજૂ કરશે, કારણ કે 100 દિવસ પછી તેમને જ્યારે સંસદ સભ્યપદ પાછું મળ્યું છે, ઘણા બધા અનુભવો પણ આ દરમિયાન તેઓ કરી ચૂક્યા છે। તેઓ સામાન્ય લોકોને પણ મળતા આવ્યા છે રાહુલ ગાંધી। તો જ્યારથી તેમનું સંસદ સભ્યપદ છે તે રદ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારબાદથી રાહુલ ગાંધી છે તે તેમણે પોતે પોતાનો બંગલો પણ ખાલી કરી દીધો હતો। તે તેમની માતા સાથે 10 જનપથમાં રહેતા હતા। આ સિવાય તેમણે ઘણા બધા લોકો સાથે પણ તેમણે ચર્ચાઓ કરી હતી। તો આ જે બે દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે લોકસભાની કાર્યવાહી વખતે જ્યારે તેઓ સંસદ। તો વધુ વિગત મેળવીશું। संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जुड़ाई गया है। अजय जी, राहुल अभी वहां पे पहुंच चुके हैं, आज वो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, वो कॉमन मैन से भी मिले हैं, तो क्या लगता है आज क्या वो संसद में क्या कुछ बोलेंगे?
देखिए, सबसे पहले नज़ारे की बात करें कि राहुल गांधी जो कि करीब 4.5 महीने से संसद से दूर थे, उनका कोई भी वक्तव्य संसद के भीतर देखने को नहीं मिला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जो संसद सदस्यता है, एक तरह से जब उसको बहाल करने का आदेश एक तरह से दिया गया, तो उसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये अधिसूचना जारी हो चुकी है और वो अब संसद में पहुंच चुके हैं। और खास करके संसद में पहुंचने के नज़ारे की अगर बात करें तो राहुल गांधी जब यहां पर आए तो राहुल गांधी के पक्ष में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं उनके द्वारा नारे लगाए गए, बल्कि जितने इंडिया गठबंधन के जितने भी मेंबर्स थे सबकी तरफ से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और राहुल गांधी संसद पहुंचने से पहले सबसे पहले गांधी प्रतिमा के सामने गए और वहां पर उन्होंने गांधी जी को नमन करने के बाद जब संसद भवन के भीतर घुस रहे थे तो नजारा कुछ अजीब सा था, बदला बदला सा था। न सिर्फ राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में सांसद चल रहे थे, बल्कि जो लोकसभा का गलियारा है या कह सकते हैं कि जो लॉबी है, वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ लोकसभा सचिवालय से जुड़े हुए कर्मचारी बल्कि अन्य दूसरी पार्टियों के जो सांसद हैं राहुल गांधी के इस नजारे को देख रहे थे। तो फिलहाल राहुल गांधी करीब 4.5 महीने बाद जब से उनकी खास करके लोअर कोर्ट से सदस्यता गई थी मोदी सरनेम को लेकर के मानहानि के मामले में, तब से 4.5 महीने से इस संसद से दूर थे। उनका कोई भी वक्तव्य नहीं देखने को मिला था। हालांकि इस दौरान वो देश विदेश की धरती से लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे, लेकिन अब वो संसद पहुंच चुके हैं। देखना यह होगा कि क्या आज उनकी तरफ से कोई संबोधन आता है या नहीं आता है। लेकिन ये जरूर है कि कैमरे की जो नजरें हैं फिलहाल राहुल गांधी पे हैं और चर्चा का विषय आज राहुल गांधी है। हालांकि आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पे भी चर्चा होनी है, लेकिन खासा अट्रैक्शन राहुल गांधी को लेकर है। इस बीच एक डेवलपमेंट और आया है कि राहुल गांधी के जो ट्विटर अकाउंट पे डिसक्वालीफाइड एमपी लिखा रहता था, वहां पर अब लोकसभा सांसद के तौर पे ट्विटर पे अपडेट कर दिया गया है। तो कई तरह के डेवलपमेंट है। न सिर्फ लोकसभा सचिवालय से उनकी सदस्यता बहाल करने की सूचना गई है, बल्कि 4.5 महीने बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, संसद भवन पहुंचे और कांग्रेसी और खास करके इंडिया गठबंधन के द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो ढेर सारा जो कार्यक्रम है वो एक तरह से उनका देखने में मिला है, लेकिन अट्रैक्शन फिलहाल राहुल गांधी हैं। संसद में अब फिलहाल देखना यह होगा कि आज बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। जी अजय, ये 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। क्या कुछ लोकसभा में हुआ हंगामा, क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी पहुंचे भी नहीं है वहां पे, और 2 बजे तक ये संसद की कार्यवाही लोकसभा की वो स्थगित कर दी गई है। देखिए, आज भी जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो आज भी वही मणिपुर का मुद्दा है जिस पर चर्चा की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि इसके पहले खुद जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पे कल से चर्चा होनी है, लेकिन इस मुद्दे को कहीं न कहीं विपक्ष ने पकड़ लिया है और इसी पे बहस की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही एक दिन जरूर चलती नजर आई जब दिल्ली सेवा बिल पे लोकसभा में चर्चा हुई और दोनों पक्ष कह सकते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस पर बहस करते नजर आए। लेकिन इसके अलावा पूरे मानसून सत्र की अगर बात करें तो एक दिन की भी कार्रवाई नहीं चली और ठीक नजारा वैसा आज भी देखने को मिला। और मुद्दा एक सिर्फ मणिपुर का था कि उस पे बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पे ही चर्चा हो, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक अविश्वास प्रस्ताव आता है और उसमें जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो कोई ये जरूरी नहीं है कि वो मणिपुर के मुद्दे से ही अपनी बात को शुरू करें। लेकिन संभावना ये जरूर जताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री इस पे 10 तारीख को अपना वक्तव्य देंगे तो उसमें मणिपुर का भी जिक्र आएगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक पे नहीं होता है और इसी बात का आधार बनाकर के कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां बार बार मणिपुर का जिक्र कर रही हैं और इसी वजह से जब आज 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब हंगामे की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से बयान आया और यह कहा गया कि ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष की मंशा संसद में चर्चा करने की है, बल्कि संसद बाधित करने की ही मंशा दिखाई देती है। और ठीक उसी तरह का नजारा अब भी देखने को मिला जब यह संभावना जताई जा रही है कि 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो राहुल गांधी भी हो सकता है कि वहां पर एक चेहरे के तौर पर दिखाई दें। लेकिन कई सारे कार्यक्रमों से गुजरते हुए राहुल गांधी जब संसद की तरफ बढ़ रहे थे उससे पहले ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित है और माना जा रहा है कि 2 बजे हो सकता है कि दिल्ली सेवा बिल वहां पे इंट्रोड्यूस हो और उस पर चर्चा भी हो। जी बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो राहुल गांधी संसद पહોंचा પરંતુ લોકસભાની જે કાર્યવાહી છે તે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી। રાહુલ ગાંધી 132 દિવસ બાદ સંસદ ગયા ત્યારે તેમણે ગાંધીજીની પ્રતિમાને પ્રણામ કર્યા હતા। ત્યારે તેઓ ઘણા બધા જે નેતાઓને પણ મળ્યા, પરંતુ સૌથી એટ્રેક્શનનું કેન્દ્ર રાહુલ ગાંધી જ રહ્યા। બધાના કેમેરાની નજર ફક્ત અને ફક્ત રાહુલ ગાંધી પર જ મંડાયેલી હતી।